हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन वर्ल्ड। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश कुमार। जैसे अभी तक आपने मेरा चैनल देखा होगा तो हमने जो भी वीडियो अपलोड किया रिगार्डिंग स्पेसिफिक टॉपिक लाइक मोशंस कैसे कैसे हम बना सकते हैं, बट ट्यूटोरियल्स नहीं थे। तो अभी हम जो अपलोड करने वाले हैं फुल कोर्स अपलोड करने वाले हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग कि बेसिक्स लेके एडवांस तक हम सॉल्यूशन में क्या क्या कर सकते हैं। जो भी आपने डिज़ाइनिंग की लाइक आपका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन है, पैरामेट्रिक डिज़ाइन है, हम कैसे कर सकते हैं। R&D में हम मोस्टली यूज़ होता है, तो उसके रिगार्डिंग हम बेसिक्स लेके एडवांस पूरा हम सीखेंगे। तो पहला डे जो हमारा पहला सेशन है जिसमें हम बेसिक यूज़र इंटरफेस के बारे में समझेंगे कि सॉल्ववर्क्स कैसे ओपन करते हैं, सॉल्ववर्क्स के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, सेटिंग्स कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कि अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ कस्टमाइज़ करना है कैसे कर सकते हो। फिर हम लास्ट में देखेंगे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कि सॉल्ववर्क्स किन किन हार्डवेयर और कैसे कैसे स्मूथली आप यूज़ कर सकते हो। और फिर ओवरऑल नेक्स्ट 1.5 सेशंस जिसमें हम स्केचिंग वगैरह के रिगार्डिंग समझेंगे। ऐसे करके हम एक धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला डे, पहला सेशन। Day 1, first we just go ahead with the SolidWorks basic and user interface. Then we go for what is the difference between system option and document properties. Then how the template creation process happen, file reference and handling, SolidWorks RX, how we can self-assistance for the hardware. If we have some issues in our hardware, then how we can resolve our issue ourselves. So let's start with SolidWorks basic and user interface. So SolidWorks user interface, you can see right side you have written some notes. आपको राइट साइड में कुछ नोट्स देखने मिलेंगे। राइट साइड में आपके कुछ लिस्ट है, मेन्यू बार, टूल बार। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपके कौन से पॉइंट कहाँ होते हैं आपके यूजर इंटरफेस में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1, मेन्यू बार। So you can see the annotation 1 is arrived. This is our menu bar where we can save our document. We can go ahead with print option. Here we found a system option and document properties option, yani SolidWorks document. We have options of file properties. We have an options of SolidWorks settings and all. Okay. The second option is our toolbar. This is our toolbar. We can hide or we can show as per our requirement. Third is our command manager. Command manager is a tab where we found the different features like features, sketch, sheet metal, Valmet. Right now you can see only 3 tabs, that was features, sketch, evaluate. Okay, it's depend on me how much tab I want to show or how much tab I want to hide. So this is used as a tool for creating our 3D command. So next option is our document manager. So this is our document manager where we can find out our history of our 3D model. If in case we need to change our design or we need to recorrect, we have found some revision, then we just go ahead with our fourth option, that was document manager. In our document manager we have 6 options. The first 4th A, that was feature manager design tree. This is our history. This is our 3D model history. Then 4th B, that was property manager. Whenever I just select any command like extrude, sketch, or whatever command want to make a sketch, want to make a 3D model, then automatically 4A switch to 4B, that was property manager. Okay, property manager represent the command, how the command works, or what was the requirement for the creating that object, or what is the need to fulfill the command. Okay, and then 4th A automatically shift on our graphic area. 6C, configuration manager, where we can find out different configurations. Like if I need to create a multiple version of our any 3D CAD file. For example, if I want to make a shaft with different parameters, I need to change the length of my shaft, like 500, 600 and 700. In that case, I did not want to make a different file. I just go ahead with 4th C option, that was configuration manager. Here I just create the different configurations of a single file and use as a separate file in our assembly, or make a different drawing in our with the help of drawing command. Okay, then we have a D.
D option, that was DIM Expert Manager. DIM Expert Manager is used for represent the 3D annotations on our graphic area. Then we have a E option, that was Display Manager. In Display Manager we can find out different appearance which we use for the 3D model or camera settings, and all the things are found in our E option, that was Display Manager. The last option, that was Feature Manager Design Tree Filter. Okay, that was F. It is our filter. For an example, I just use 100 of command to make a 3D model, or if I need to find out a single sketch or single command in hundreds of command. So how can I find out that? I just use a filter. Even you can find filter option in different social sites or browser and e-commerce sites like Amazon or all. The very same way the filter is used. If I need to find any command in 100 of features, so I just write down the name and find out. Next option is fifth, reference tide. Reference tide represent the X, Y and Z coordinate. Mostly reference tide used in my Valmet and Sketch structural system options. It represent the X, Y, Z. Now the sixth option is our task pane. Here we have different options like home, design library, explore, view palette. Now we have 7 options, that was our SolidWorks search. Here if I need to find any command directly, like I know extrude command is found in our feature tab, but if any command which I did not know where I just find out, then what I do, I just go for the 7th option, that was SolidWorks search command. Here I just wrote down the name and find out that command. The 8th option is status bar. It is our status bar which represent the status of our mode, like in which unit I am working, which version I am working, which service pack I am using and other things. 9, it's our heads up view toolbar, where we have find out some shortcuts like zoom in zoom out options, section view, pan option, hide and show options, appearance, display options. The last option is our 10 option, that was graphic area, where we can create our 3D model. Now we just go ahead the next option, that was our next topic is our SolidWorks default template. You can see we have 3 different template: part, assembly and drawing. Whenever I just start my SolidWorks and I just find out this template, this is our default template. So जब भी आपको कुछ select करना हो, आप create करना हो 3D model, then you just go and select a part. If I need to make a assembly, मुझे assembly create करनी तो assembly पे जाता हूँ, drawing create करना है then drawing select करता हूँ. This way मैं अपने models या drawing assembly create करता हूँ. But sometime क्या होता है कि if I am working in any company where I just use a standardized data, standardized template, लाइक मुझे ड्राइंग के लिए मेरे कंपनी का टेम्पलेट ही यूज़ करना है, असेंबली के लिए अपना टेम्पलेट यूज़ करना है, तो मैं कस्टमाइज टेम्पलेट भी क्रिएट करता हूँ. तो कस्टमाइज टेम्पलेट यूज़ करने के लिए आई जस्ट क्लिक इन एडवांस ऑप्शन एंड देन आपका विंडो अराइव होएगा लाइक दिस वे. इसमें आपका एफ, जैसे मैंने एफ क्रिएट करके रखा फॉर द पार्ट एंड ड्राइंग, तो आप डिफरेंट कस्टमाइज टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो एक्सेप्ट देन यूजिंग डिफॉल्ट टेम्पलेट. आप डिफॉल्ट टेम्पलेट छोड़ के भी आप दूसरे टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो. नाउ हाउ वी कैन क्रिएट दिस टेम्पलेट्स, कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम ऑप्शन एंड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, कि सॉल्डवर्क्स सिस्टम ऑप्शन और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस है आपका. फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम ऑप्शन इज एप्लीकेबल ऑन होल सॉल्डवर्क्स एप्लीकेशन अंटिल फर्दर एनी चेंजेस. जब तक आप कोई चेंजेस नहीं करोगे तब तक आपका सिस्टम ऑप्शन पूरी सॉल्डवर्क्स से इफेक्टिव रहता है. डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज क्या होता है, सेपरेट एंड यूनिक फॉर ईच डॉक्यूमेंट एंड अपीयरेंस ओनली आफ्टर ओपनिंग आर डॉक्यूमेंट. आपका हर एक डॉक्यूमेंट की यूनिक प्रॉपर्टीज होती है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज. फॉर एन एग्जांपल, अगर आपने 2 फाइल खोल के रखी, एक फाइल आपने MMGS में बना के रखी, दूसरी फाइल आपने IPS में बना के रखी, तीसरी फाइल में भी CGS में बना के रखी, तो वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्पेसिफिक फाइल की, तो वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज के अंदर आती है. लेट्स गो विथ आवर सॉल्डवर्क्स. सो दिस इज आवर सॉल्डवर्क्स. Here I just go for the SolidWorks settings. I just click on options. Here you can find out only system options. आपके पास सिर्फ सिस्टम ऑप्शन शो कर रहा होगा, ठीक है. तो ये आपकी सेटिंग्स आपके पूरे SolidWorks पे इफेक्टिव रहती जब तक मैं कोई चेंजेस नहीं करता हूँ. इनमें कुछ सेटिंग्स एक एक करके चेक करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होगी आपके लिए वो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गो हेड विद इम्पोर्ट ऑप्शंस. इन इम्पोर्ट द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज एनेबल 3D interconnect. This option is useful for the neutral file format like STEP, IGS, Parasolid. आपके कोई भी neutral format के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है.
फॉर एन एग्जाम्पल, आपको कोई भी न्यूट्रल फॉर्मेट डायरेक्टली ओपन करना है विदाउट ब्रेकिंग द लिंक, विदाउट कन्वर्टिंग दैट कोड इनटू आवर सॉल्डवर्क्स कोड, देन जस्ट चेक दिस ऑप्शन एंड ओपन दैट फाइल। ओके, अगर आपको उसकी लिंक को ब्रेक करना है और आपको उस फाइल को मे बी कुछ ऑपरेशंस यूज करना है, उस पर कुछ वर्कआउट करना है, देन आई जस्ट अनचेक दिस ऑप्शन एंड देन ओपन दैट फाइल। व्हेन आई अनचेक दिस ऑप्शन एंड ओपन दैट फाइल, देन ऑटोमेटिकली वो लिंक ब्रेक के साथ ही ओपन होती है। अगर आप चेक करके ओपन करोगे तब वो लिंक के साथ ओपन होगी, और देन ओपन करने के बाद भी ब्रेक कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। द सेकेंड ऑप्शन इज मैसेज एरर एंड वार्निंग। वेन एवर यू फाइंड आउट एनी मैसेज, एनी एरर मैसेज कि आप कोई असेंबली ओपन कर रहे हो, आपको कोई एरर आ रहा है और आपने डोंट शो अगेन पे क्लिक करके चेक करके ओके कर दिया, सो व्हाट हैपन, वो मैसेज ऑटोमेटिकली आपके इस बॉक्स या इस कॉलम में आके ऐड हो जाता है। ठीक है, इन केस कि आपने कोई दूसरी असेंबली खोली और आप उस असेंबली में सेम एरर आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, आ रहा है, लेकिन वो आपको सॉल्डवर्क्स शो नहीं करेगा जब तक आप इसको वापस चेक करके ओके नहीं करोगे। ठीक है, आपने डोंट शो अगेन पे क्लिक किया होता है, इसलिए वो वापस आपको शो नहीं करता है। बट क्या होता है कि कभी कभी कोई असेंबलीज में बहुत ज़्यादा एरर होते हैं, अगर हमें सॉल्डवर्क्स एरर वार्निंग रिप्रेजेंट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस का इशू रहता है या फिर हैंगिंग का इशू क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए हमेशा जो भी हम डोंट शो अगेन कर लेते हैं वो सारे इस कॉलम में ऐड हो जाते हैं और उसे हम वापस चेक करके ऐड इन कर लेते हैं। द सेकेंड ऑप्शन इज अवर होल विजार्ड एंड टूल बॉक्स ऑप्शन, कि आपका टूल बॉक्स या होल विजार्ड आप जो यूज़ कर रहे हो, अपने नॉर्मली ब्राउज भी कर सकते हो अपना होल विजार्ड। ठीक है, आपको होल विजार्ड कहाँ से कौन से लोकेशन से ब्राउज करना है, इवन अपनी ये होल विजार्ड की लोकेशन या होल डेटा का लोकेशन आप अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में आपका इंस्टॉल रहता है जब भी आप इंस्टॉल करते हो, बट अपने अकॉर्डिंग आप चेंज भी कर सकते हो। देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ बैकअप एंड रिकवर। दिस इज वेरी यूजफुल, दिस इज कंपल्सरी। आई जस्ट रिकमेंडेड टू ऑल द यूजर्स विच आर वर्किंग अंडर इन एनी कंपनी, एनी फर्म। ओके, कि आपको ये दो ऑप्शंस हमेशा चेक रखने हैं कि इन केस आपका सिस्टम सडनली ऑफ हो जाए, सॉल्डवर्क्स क्रैश कर जाए या कोई भी इशूज हो आपके सिस्टम में, तो आपका एटलीस्ट बैकअप क्रिएट हो जाए उस फाइल का। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में ये ऑप्शंस पता नहीं होता, तो क्या होता है कि नॉर्मली वो वर्कआउट कर रहे हैं और उन्हें मे बी सेव करने की हैबिट ना हो, इन केस वो उनका जितना भी वर्क किया होता है वो आपका पूरा चला जाता है, पूरे डे की मेहनत आपकी वेस्ट जा सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं नॉर्मली कि ये ऑप्शन दोनों चेक रखते हैं। ये तभी आपको बैकअप क्रिएट करके देगा जब सडनली सिस्टम क्रैश कर जाए या बंद हो जाए, इन केस आपका फॉल्ट ना हो, यानी आपने अगर कोई फाइल क्रिएट किया और आपने बिना सेव किए क्लोज कर दी, इन दैट केस आपको ये बैकअप क्रिएट करके नहीं देगा। तो यहाँ पे आपको ऑटो रिकवर फोल्डर और बैकअप फोल्डर में दोनों जगह पे आपको सेम लोकेशन ही प्रोवाइड करनी है, यानी एक्सेप्ट देन सी ड्राइव। आप कोई भी ड्राइव में एक फोल्डर बना लो, DE किसी में भी एक फोल्डर बना लो, दोनों जगह सेम लोकेशन एलोकेट कर दो। नंबर ऑफ बैकअप कॉपी एटलीस्ट आई रिकमेंडेड आप 3 बना के रखो। ऑटोमेटिकली रिमूव भी करता रहेगा जितने दिनों बाद आप रिमूव करना चाहो, लाइक फॉर एग्जांपल 6 दिन में रिमूव करना, 7 दिन में रिमूव करना, तो वो रिमूव भी कर सकते हो अपने चीज़ों को। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रिमूव करता रहेगा, यानी आपकी ड्राइव फिल नहीं होने देगा। देन इवन केस जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया कि आपको सेव करने की हैबिट ना हो, तो ऑटोमेटिकली सॉल्डवर्क्स आपको नोटिफिकेशन भी शो करेगा जितने मिनट आप यहाँ पे टाइप करोगे। फॉर एग्जांपल आई जस्ट टाइप 10, दैट मीन्स वो एवरी 10 मिनट वो मुझे एक मैसेज अराइव करेगा अपने विंडो के ऊपर कि आपने डॉक्यूमेंट सेव नहीं किया लास्ट 10 मिनट से। ठीक है, और 5 सेकेंड बाद वो डिसमिस भी हो जाएगा। तो ये अपने अकॉर्डिंग आप सेटिंग सेट कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज अवर फाइल लोकेशन। फाइल लोकेशन में एडिट ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ। हियर यू कैन फाइंड आउट कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ से पिकअप कर रहा है। फॉर एग्जांपल टेम्पलेट आपका पिक कर रहा है तो कौन सी लोकेशन से उठा रहा है, लाइक सी सॉल्डवर्क्स 21 टेम्पलेट, इस लोकेशन से आपकी टेम्पलेट उठा रहा है, या फिर बॉम्ब टेम्पलेट कहाँ से पिक कर रहा है। तो आपकी जितनी भी चीज़ें आपकी सॉल्डवर्क्स में सेटिंग्स में ऐड है वो कहाँ कौन से लोकेशन से पिक कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल जाती है। जैसे वेलवेंट प्रोफाइल कहाँ पे है, इन केस आपको जैसे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आपकी यहाँ से उठा रहे डिफ़ॉल्ट लोकेशन। अगर आपको कस्टमाइज लोकेशन में आपने कोई टेम्पलेट सेव रखी है और उस लोकेशन से आपको पिक करनी है, तो आप वो कस्टमाइज लोकेशन ऐड भी कर सकते हो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में। इवन आपको डिलीट करना है, डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको वेलवेंट प्रोफाइल ऐड करनी है डिफॉल्ट लोकेशन में, तो वेलवेंट प्रोफाइल पहले सर्च करो, वेलवेंट प्रोफाइल में आप वो लोकेशन ऐड कर लो। यानी जब तक लोकेशन ऐड नहीं होगी तब तक वो चीज़ें पिक नहीं करता है। डिफॉल्ट लोकेशन तो ऑटोमेटिकली रहती है इसमें, अगर आप री इंस्टॉल भी करते हो डिफॉल्ट लोकेशन एज इट इज आपको मिल जाती है।
बट इन केस आपने कोई कस्टमाइज लोकेशन आपने ऐड करके रखी होगी तो वो रिमूव हो जाती है, डेटा डिलीट नहीं होता, सिंपली लोकेशन रिमूव होती है। सो आप वापस उस लोकेशन को ऐड कर सकते हो यहाँ पे। वो डिपेंड करता है कि आपने डेटा कहाँ सेव रखा। कभी कभी हम डिफॉल्ट लोकेशन पे ही सेव रखते हैं और कभी कभी कस्टमाइज लोकेशन, वो डिपेंड ऑन यू, ओके, आप कहाँ पे सेव करते हो। देन वी हैव डिफॉल्ट टेम्पलेट कि बाय डिफॉल्ट जब मैं पार्ट पे क्लिक करता हूँ, असेंबली पे क्लिक करता हूँ या ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये स्लाइड शो की थी जिसमें पार्ट, असेंबली, ड्राइंग सिर्फ 3 टैब दिख रहे हैं। एंड देन व्हेन आई क्लिक इन एडवांस देन यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस इफ यू हैव क्रिएटेड द कस्टमाइज टेम्पलेट, ओके। व्हेन यू क्लिक ऑन पार्ट तो ऑटोमेटिकली सिर्फ पार्ट डिफॉल्ट टेम्पलेट ही क्यों उठाता है, आपको कस्टमाइज टेम्पलेट भी तो उठा सकता है। वो सेटिंग्स आपकी यहाँ से होती है। डिफॉल्ट टेम्पलेट, आपको डिफॉल्ट टेम्पलेट आपने क्या सेट रखा वो इस पर डिपेंड करता है। देन वी हैव अनदर ऑप्शन दैट वाज असेंबली। असेंबली में जाके आप ये कुछ ऑप्शन सेट रख सकते हो लार्ज असेंबली सेटिंग्स के रिगार्डिंग। अगर आपकी असेंबली हैवी है तो ये बंडल ऑफ सेटिंग्स होती है लार्ज असेंबली सेटिंग्स, आप इनको चेक कर सकते हो, ठीक है। डू नॉट रिबिल्ड व्हेन स्विचिंग टू असेंबली, ठीक है। हाइड ऑल द प्लेन एंड स्केचेस, जो आपके हैंगिंग का इशू रीजन्स भी क्रिएट होती है। डू नॉट डिस्प्ले द एजेस इन शेडेड मोड। डू नॉट प्रीव्यू द हिडन कंपोनेंट का प्रीव्यू रिक्वायरमेंट नहीं होता है। डिस्प्ले वेरिफिकेशन और बिल्ड, ऑप्टिमाइज इमेज क्वालिटी फॉर द बेटर परफॉर्मेंस, ये चीज़ें आप सेट रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इवन आप कोई असेंबली ओपन करते हो तो यहाँ पे आप ये भी सेट रख सकते हो कि अगर आपकी असेंबली के काउंट यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट नियर बाय 500 या अबव 500 है तो आप किस मोड में ओपन करोगे, बाय डिफॉल्ट लाइट वेट मोड या एंड लार्ज असेंबली सेटिंग्स के साथ। इफ़ योर कंपोनेंट अबाउ 5000 देन ऑटोमेटिकली आप LDR मोड में वो आपको सॉलिडवर्क्स ओपन करके दे देगा, यानी आपको सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप जब ओपन करते हो कोई भी असेंबली को वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है किस मोड में आपको ओपन करना है, जैसे जो वैल्यू आप यहाँ पर टाइप करोगे इसके अकॉर्डिंग। देन वी हैव अनदर टैब दैट वाज परफॉर्मेंस। इन परफॉर्मेंस वी चेक दिस ऑप्शन ऑटोमेटिकली लोड कंपोनेंट लाइट वेट मोड। हम ये रिकमेंडेड करते हैं कि कोई भी असेंबली नॉर्मली हम लाइट वेट मोड में ओपन करते हैं। हैबिट है, बाकी अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। इवन लेवल और डिटेल्स कम ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस फास्ट या ओपन कैसे ओपन करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये ऑप्शन चेक कर सकते हो, एनहेंस ग्राफिक परफॉर्मेंस। बट जब भी आप इसको अनचेक या चेक करो तो आपको सॉलिडवर्क्स को क्लोज करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सिस्टम क्लोज ऑन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ सॉलिडवर्क्स ऑन और ऑफ करने की रिक्वायरमेंट होती है। यूज़ सॉफ्टवेयर ओपन GL मोड, ये ऑप्शन अगर आपका अनेबल नहीं है, इन दैट केस में भी आपका ग्राफिक कार्ड आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड नहीं है। तो ये ऑप्शंस आपको ध्यान रखना है। ये ऑप्शंस आपको देखने मिल जाता है जब आपका ग्राफिक कार्ड आपके सिस्टम के रिकमेंडेड होता है उसके अकॉर्डिंग। देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस लाइक डिस्प्ले में आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, इसको सेट कर सकते हो। सेट, आई जस्ट क्लिक ऑन सेट, रीसेट सिस्टम, रीसेट ऑल ऑप्शन। मुझे ऑल ऑप्शन नहीं, सिर्फ डिस्प्ले को रीसेट करना है तो रीसेट दिस ऑप्शन ओनली, ठीक है। तो सिर्फ डिस्प्ले ही रीसेट होगा। ऐसे करके आप चीज़ें रीसेट भी कर सकते हो। देन स्केच में आपको 2 ऑप्शन आपको ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो रोटेट व्यू नॉर्मल टू द स्केच प्लेन क्रिएशन, स्केच क्रिएशन एंड स्केच एडिट। जब भी आप स्केच एडिट या क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाता है आपका प्लेन। सेकेंड, अनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक इनपुट, कि जब भी आप कोई डायमेंशन देते हो, फॉर एग्जांपल आप आपने कोई 2D सॉफ्टवेयर में भी यूज़ किया हो लाइक ऑटोकैड एंड ड्राफ्टसाइड एंड ऑल, तो लाइक मैं सर्कल बना रहा हूँ, सर्कल बनाते वैल्यू टाइप कर देते हो, उतना ही बड़ा आपको सर्कल बनाता है एग्जैक्ट, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप ये ऑप्शन चेक कर सकते हो कि आपने सर्कल की कमांड यूज़ की है, देन आपने 50 यूज टाइप के एंटर किया तो 50 mm का वो आपका सर्कल क्रिएट करके दे देगा। देन दी सेकेंड ऑप्शन इज आवर परफॉर्मेंस इन अंडर ड्राइंग। तो ये आप 2 ऑप्शन अनचेक कर सकते हो सिस्टम परफॉर्मेंस को थोड़ा इंक्रीज करने के लिए, कि डिटेलिंग मोड वाइल सेविंग एंड सोर्स द कंटेंट ड्रैग एंड ड्रॉप, ये आप अनचेक कर सकते हो। बाकी चीज़ों को आप थोड़ा डिफ़ॉल्ट रख सकते हो, कोई इशूज़ नहीं है, ठीक है। और आगे जैसे जैसे हम नेक्स्ट क्लासेस करेंगे उसमें हम एक सेटिंग्स में हम वापस वर्कआउट करेंगे कैसे कैसे कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। सो आई जस्ट क्लिक ओके। तो दिस इज अवर सिस्टम ऑप्शन। वेन एवर आई जस्ट ओपन एनी डॉक्यूमेंट, लाइक मैंने कोई डॉक्यूमेंट ओपन किया, पार्ट ओपन कर लिया, एंड आई जस्ट गो फॉर दी सेटिंग्स अगेन, तो यू कैन फाइंड आउट सिस्टम ऑप्शन एंड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। सो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, एवरी फाइल। हर एक फाइल की आपकी यूनिक होती है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। इंडस्ट्रीज में कुछ इश्यूज ये रहते हैं कि मे बी कुछ डॉक्यूमेंट्स में उन्हें इश्यूज आने लग जाते हैं फॉर हैंगिंग इश्यूज, कुछ इश्यूज रहते हैं आपके कि कुछ कमांड वर्क नहीं कर रही है, तो वो फाइंड आउट कर सकते हो कि वो सिस्टम स्पेसिफिक इशू है या डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक इशू। अगर वो इशू मल्टीपल फाइल्स या डिफरेंट फाइल्स में भी आपको अराइव हो रहा है, दैट मीन्स मे बी दैट इशूज इज रिलेटेड टू योर सिस्टम स्पेसिफिक इशू।
If the issue is affect only a specific file or only on one file, that means the issue is reflect related to your document specific issue. ठीक है, मे बी उसी डॉक्यूमेंट की स्पेसिफिक है. तो इसमें आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट यूनिट सेट कर सकते हो, लाइक यूनिट्स वगैरह, एनोटेशंस की फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या आना चाहिए, डायमेंशंस की फॉन्ट क्या आना चाहिए, स्टाइल्स क्या होनी चाहिए, टेबल्स कैसे होने चाहिए, डिस्प्ले वेलमेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक में सेट कर सकते हो. ओके, नाउ बैक टू अवर प्रेजेंटेशन. सॉलिडवर्क्स सिस्टम ऑप्शन डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में भी क्लियर हो गया होगा. द नेक्स्ट ऑप्शन इज अवर सॉलिडवर्क्स सेटिंग्स. सेटिंग्स में आपको बस एक ऑप्शन और रहता है, डेट वॉज सेव सेटिंग विजार्ड. I just go ahead and open my SolidWorks settings के बाजू में आपको स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन है. देन यू जस्ट गो अहेड एंड सेलेक्ट दी सेव एंड रिस्टोर सेटिंग ऑप्शंस. ओके, ये ऑप्शन हम नॉर्मली तब यूज़ करते हैं इन केस हमें कुछ सेटिंग्स लाइक मैंने कस्टमाइज करके रखी है. लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कुछ शॉर्टकट सेट रखे हुए हैं अपने कीबोर्ड में, माउस गेस्चर सेट रखे हुए हैं, या कुछ शॉर्टकट मेन्यू अपने सेट रखे हुए हैं. ऐसे केस में हम चीज़ों को जब भी हम रीइंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं या रजिस्ट्री रीसेट करते हैं, तो ऐसी जगह पे वो वापस डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं. तो उन सेटिंग्स को आपको रीस्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उन सेटिंग्स का बंडल क्रिएट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा. तो आई जस्ट क्लिक ऑन सेव सेटिंग्स ऑप्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, देन जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन. कौन सी सेटिंग्स को आपको सेव करना है, आप ये यहाँ पे वो ऑप्शन चेक कर सकते हो, जैसे सिस्टम सब, टूल बार लेआउट, कीबोर्ड शॉर्टकट, माउस गेस्चर, मेन्यू कस्टमाइजेशन, सेव मेन्यू. तो अगर जो रिक्वायरमेंट है वो सेव रखो, जो रिक्वायरमेंट नहीं वो अनचेक कर सकते हो. जो ये फाइल जो सेव होगी वो .sld.reg फॉर्म में सेव होती है. आपको किस लोकेशन में सेव करना है वो आप ब्राउज कर सकते हो. जब भी आप रीइंस्टॉल या ब्राउजर विंडोज फॉर्मेट हो जाए, या इन केस आपको रीइंस्टॉल करना पड़े, तो आपको जब भी रीइंस्टॉल करना हो सेटिंग्स को, सेम फाइल आपके सिस्टम में प्रेजेंट होनी चाहिए. ठीक है, ये फाइल आपकी जब प्रेजेंट होगी, देन आपको सिंपली सॉलिडवर्क्स ओपन करके वापस सेव एंड रिस्टोर पे जाना है और रीस्टोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है. नेक्स्ट, और ब्राउज कर लेना जो भी आपने लास्ट टाइम सेव किया होगा उस फाइल को. ठीक है, जब ब्राउज कर लोगे तो आप रिस्टोर कर पाओगे. अगर वो फाइल इन केस डिलीट हो जाती है, देन आपकी वो सेटिंग्स में भी चली जाएगी. ओके, तो बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन आपका क्या है, सिंपली कि आपका बंडल ऑफ सेटिंग्स को स्टोर रखता है आप एज ए SLD.reg फॉर्म में. नीड टू रीलोकेट इन एनी केस ऑफ सेटिंग रीस्टोर और रजिस्ट्री रीसेट. इवन कभी कभी क्या होता है इंडस्ट्रीज में, फॉर एग्जांपल में 2-3 सिस्टम में हम वर्क कर रहे हैं एज ए डिज़ाइन टीम, देन मेरी सेटिंग्स एज ए स्टैंडर्ड सेटिंग्स वर्क कर रही है, एंड दूसरे सिस्टम में कुछ इशूज़ आ रहे हैं, उससे भी मुझे सेम सेटिंग्स सेंड करनी है. सो व्हाट आई डू, द सेम फाइल आई जस्ट सेंड टू हिम और हर, एंड देन ही जस्ट ओपन दैट फाइल एंड रीस्टोर दैट सेटिंग ऑन हिज सिस्टम ऑल्सो. ओके, वो अपने सिस्टम में रीस्टोर कर सकते हैं. बट यू नीड टू टेक केयर अबाउट द वर्जन. अगर आप सेम वर्जन में वर्क कर रहे हो तो देन इट्स ओके, नो इशू. अगर आप डिफरेंट वर्जन्स में यूज़ कर रहे हो तो मे बी आपको कुछ इशूज़ रह सकते हैं लोकेशंस के रिगार्डिंग. द नेक्स्ट ऑप्शन इज अवर डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्रिएशंस. So what, first of all, the first question in our mind that was, what is template? Template is a collection of certain specific document properties and functions. Template are used to reduce rework or providing specific document properties, functions, required to the document. ये आपकी collection of specific document properties होती हैं. फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे रीवर्क नहीं करना अगेन एंड अगेन. लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मैं मॉर्निंग में आ रहा हूँ, अपना कोई मॉडल या ड्राइंग मुझे क्रिएट करना है, कोई एनपीडी डिपार्टमेंट में कुछ वर्कआउट आया है, मैं वर्कआउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई नीड टू डू, फर्स्ट आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट अ पार्ट टेम्पलेट. देन मुझे मटेरियल सेलेक्ट करना है. इफ़ इन माई कंपनी आई ऑलवेज यूज MS और ब्रास, कॉपर, वॉट एवर, कि मेरे स्पेसिफिक एक मटेरियल यूज़ हो रहा है फॉर, और इवन कि मेरा यूनिट MMGS में ही यूज़ होता है, या फिर आपके कुछ और चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में जो आप रेगुलर बेस पे फिल कर रहे हो, ऐसी चीज़ों को अगर आप रेगुलर बेस में नहीं करना चाहते तो सो व्हाट आई डू, आई नीड टू सेव ऑल दी सेटिंग्स इन अ टेम्पलेट फॉर्म. तो टेम्पलेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ सर्टन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़. तो आपको रीवर्क वापस नहीं करना पड़ेगा. देन आप वो टेम्पलेट सेलेक्ट करके उन सारी सेटिंग्स के साथ आप वो काम कर सकते हो, यानी रेगुलर बेस पे आपको फिल आउट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एक्सटेंशंस की बात करते हैं. मे बी टेम्पलेट क्लियर हो गया तो एक्सटेंशंस की बात करते हैं, फिर देखते हैं टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दी एक्सटेंशंस. नॉर्मली पार्ट असेंबली और ड्राइंग आप सेव करते हो कोई भी फाइल, जिससे पार्ट सेव करो, पार्ट आपने क्रिएट कर लिया, सेव करो, तो किस फॉर्म में सेव होता है, SLD.PRT फॉर्म होता है. सॉलिडवर्क्स का जो एक्सटेंशन होता है वो SLD.PRT. असेंबली का जो एक्सटेंशन होता है वो SLD.ASM. ड्राइंग का जो एक्सटेंशन होता है वो SLD.DRW. जो टेम्पलेट के एक्सटेंशन होते हैं वो होते हैं आपके पार्ट का PRT DOT, असेंबली का ASM DOT, ड्राइंग का DRW DOT. जो DOT फॉर्म्स होते हैं वो आपके एक्सटेंशंस होते हैं आपके
टेम्पलेट के रिगार्डिंग। तो ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर हैव ऑन एक्सटेंशन लाइक सॉलिडवर्क्स के SLDPRT, ASM, DRW दिस वे, बट टेम्पलेट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज को सेव करना है, देन हम टेम्पलेट फॉर्म में सेव करते हैं और उनके एक्सटेंशन होते हैं DOT फॉर्म। सो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ योर फाइल। नाउ वी जस्ट गो हैड द प्रोसेस ऑफ सॉलिडवर्क्स टेम्पलेट क्रिएशन ऑफ पार्ट, असेंबली एंड ड्राइंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट गो हैड विद द पार्ट ऑप्शंस कि पार्ट टेम्पलेट कैसे क्रिएट करनी है हमें, ठीक है, अगर टेम्पलेट फॉर्म सेव करनी हो तो। ओपन अ न्यू पार्ट डॉक्यूमेंट एंड सेट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज, क्लिक ऑन सेव एज एंड select part template as a document extensions type, ठीक है। प्रोवाइड लोकेशन स्पेसिफिक फॉर द टेम्पलेट एंड सेव द डॉक्यूमेंट। तो एक एक करके हम चीज़ें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट टेम्पलेट ओपन करते हैं। टेम्पलेट आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के साथ सेव होता है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपका ये क्लियर किया डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ और सिस्टम ऑप्शन में क्या डिफरेंस है आपका। तो जब भी आपको टेम्पलेट क्रिएट करनी है तो आप पहले डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट अपना ओपन कर लो। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मैंने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ओपन किया। अब इन माई केस कि मुझे अपना मटेरियल मेरी कंपनी में मे भी निकल ही यूज़ होता है, जो भी मैं क्रिएट करता हूँ कंपोनेंट जो भी मुझे क्रिएट करना है निकल में ही क्रिएट करने होते हैं। तो मैं रेगुलर बेस पे निकल ऐड करने से अच्छा मैं इसको सेट कर लूँगा एज ए टेम्पलेट फॉर्म। यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट MMGS आती है, बट मेरे को कस्टमाइज यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इन दैट यूनिट मेरे को ग्राम की जगह KG रिक्वायरमेंट होती है। तो एडिट डॉक्यूमेंट यूनिट ओपन किया मैंने, यहाँ पे मैंने कस्टम पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे KG सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट यूनिट में मैंने कस्टम यूज़ कर लिया MGS, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी मैंने सेट रखा। अगर मुझे कुछ और सेटिंग्स सेट रखनी है लाइक फाइल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल, तो आप वो भी सेट कर सकते हो, ठीक है। आपको फाइल प्रॉपर्टी फिल करना है वो भी फिल कर सकते हो। इन सारी सेटिंग्स के साथ अगर आपको सेव करना है एज ए बंडल फॉर्म, बंडल ऑफ टेम्पलेट, सो व्हाट आई डू, आई जस्ट गो हेड एंड क्लिक ऑन सेव एज ऑप्शन। सेव एज ऑप्शन पे क्लिक किया, देन आई जस्ट सिलेक्ट अ पार्ट टेम्पलेट, सिलेक्ट अ पार्ट टेम्पलेट, ओके। असेंबली ओपन करोगे तो असेंबली टेम्पलेट का ऑप्शन मिलेगा, ड्राइंग ओपन करोगे तो ड्राइंग टेम्पलेट का ही ऑप्शन देखने मिलेगा आपको। यहाँ पे असेंबली टेम्पलेट नहीं मिलेगा और ड्राइंग टेम्पलेट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने पार्ट लेवल खोल के रखा है। तो पार्ट टेम्पलेट पे क्लिक किया, आपको किस नाम से सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट गो एंड सेव विद द नेम ऑफ डिज़ाइन वर्ल्ड। डिज़ाइन वर्ल्ड नाम से मुझे सेव करना है। किस लोकेशन पे सेव करना है, दिस इज योर डिफॉल्ट लोकेशन और कस्टमाइज लोकेशन। इफ़ यू सेव दिस टेम्पलेट ऑन योर कस्टमाइज लोकेशन, मैंने अभी डिफॉल्ट लोकेशन पे सेव रखा है। बाकी अगर आप कस्टमाइज लोकेशन पे सेव करते हो तो आपको फाइल लोकेशन में जाके डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के अंदर वो लोकेशन ऐड करनी पड़ेगी, तभी वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखेगा। अभी डिफ़ॉल्ट लोकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ऐड है, तो मैं जब भी एडवांस में क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी टेम्पलेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अराइव हो जाएगी। तो आई जस्ट क्लिक ऑन डिज़ाइन टेम्पलेट, तो आप देखोगे आपकी जो भी सेटिंग यहाँ पे सेट रखी थी वो सेटिंग एज इट इज़ आपको मिलती है। तो आपको बार बार सेट ना करना पड़े, इसलिए हम टेम्पलेट फॉर्म या टेम्पलेट में सेव करते हैं। So this is the procedure of your part template. Again, I just read कि open a new part, open your default template, or I just recommended open your default template. Set all the required document property, जो भी आपको document property require है वो set कर लीजिए। Save as पे click कीजिए, then just go and select the part template option, part template extension. Provide the location, depend on your default or specific location, it's on you. Okay, and then save the document. This is the procedure of your part template. The very same procedure is used for the assembly template. ठीक है, उसके लिए भी सेम प्रोसीजर होता है। असेंबली ओपन कीजिए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी सेट कीजिए, सेव एज पे क्लिक कीजिए, असेंबली टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिए, लोकेशन दीजिए और सेव कर दीजिए। बट व्हेन आई टॉक अबाउट ड्राइंग टेम्पलेट, देन सम प्रोसीजर हैज़ बीन चेंज इन आवर ड्राइंग टेम्पलेट। यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो जाता है, डेट वाज सीट फॉर्मेट। तो ड्राइंग टेम्पलेट में आपका जो प्रोसीजर रहता है वो ये रहता है कि आप पहले कोई ड्राइंग टेम्पलेट और डॉक्यूमेंट टेम्पलेट ओपन करोगे, ठीक है। ड्राइंग का टेम्पलेट आपने ओपन किया, फिर आपने उसमें सीट फॉर्म जो भी चेंजेस करने हैं, लिंकिंग वगैरह, वो लिंकिंग सेट कर दी, ठीक है। उन लिंकिंग के साथ आपको बॉर्डर वगैरह सेट करने के बाद आपको पहले सीट फॉर्मेट में सेव करना है। सीट फॉर्मेट हमारा रिक्वायरमेंट होता है अगर हमें मल्टीपल सीट यूज़ करनी है एक सिंगल सीट ड्राइंग में, तो हमें सीट फॉर्मेट में सेव करना पड़ता है, ठीक है। जब मैं ड्राइंग के टॉपिक में जाएंगे तब हम इसको डिटेल में देखेंगे ड्राइंग टेम्पलेट कैसे सेव करते हैं। अभी मैं आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ कि कैसे कैसे आप ड्राइंग टेम्पलेट क्रिएट करते हो। ओके, सेट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, फिर आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज सेट कर लीजिए, सेव एज पे क्लिक कीजिए और ड्राइंग टेम्पलेट सेव कर लीजिए। इसमें बस आपको एक टर्म ऐड हो जाता है, डेट वॉज सीट फॉर्मेट।
ओके, तो इसमें हम वापस आएंगे जब हम ड्राइंग के टॉपिक पे जाएंगे। सॉलिडवर्क्स फाइल रेफरेंसिंग एंड हैंडलिंग। सो फाइल रेफरेंसिंग रिगार्डिंग फॉर एन एग्जांपल लाइक कि अगर आप कोई पार्ट क्रिएट करते हो विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट, टेबल, डिज़ाइन टेबल और वॉट एवर, और देन यू जस्ट गो फॉर द असेंबली ऑप्शन। लाइक आपको असेंबली क्रिएट करनी है विद टॉप डाउन प्रोसेस, जिसमें आपने पार्ट लेवल पे जितने भी पार्ट क्रिएट किए देन वो अपने असेंबली में इंसर्ट किए। ओके, तो असेंबली में आपने पार्ट थोड़ी क्रिएट किया, आपने सिर्फ पार्ट लेवल पे जो क्रिएट रखे हुए हैं वो इंसर्ट किए हुए हैं। तो वेन एवर आपने पार्ट डिलीट कर दिए तो ऑफकोर्स आप असेंबली जब भी ओपन करोगे वहाँ पे एरर तो आएंगे आएंगे। यानी असेंबली में जो भी रेफरेंस है वो कहाँ से, पार्ट लेवल से आपके सारे यानी असेंबली कहाँ से रेफरेंस उठा रही है, पार्ट से। सेम वे अगर आप ड्राइंग बना रहे हो, ड्राइंग आप पार्ट की बना रहे हो या असेंबली की बना रहे हो, तो आप ड्राइंग में जो व्यू इंसर्ट कर रहे हो वो असेंबली या पार्ट से इंसर्ट कर रहे हो। अगर आपने किसी को आपको शेयर करनी है, आपने सिंपली ड्राइंग शेयर कर दी, तो वो कभी भी ड्राइंग ओपन नहीं कर सकता विदाउट एनी रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि ड्राइंग ओपन जब भी होती है वो अपने रेफरेंस सर्च करती है। अगर उसे अपने रेफरेंस फाइल या पार्ट नहीं मिलते हैं तो वो वहाँ पे ब्लैंक या एरर आपको शो होता है। ठीक है, जिससे आप वो चीज़ें ओपन नहीं कर सकते हो, पार्ट या असेंबली, यानी ड्राइंग ओपन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो वेनेवर कि आपको कोई असेंबली कुछ ओपन करना और आप उसका रेफरेंस अगर मिस कर देते हो तो वो आपको पूछता है कि या तो खुद सर्च करता है, अगर उसे नहीं मिलता तो वो ब्राउज करने के लिए ऑप्शन देता है, या तो ब्राउज करो या सप्रेस कर दो उस कंपोनेंट को या उस पार्ट को। तो ऐसे करके आप चीज़ें वर्कआउट करते हो। यानी ड्राइंग आपकी असेंबली से भी रेफरेंस लेती है और पार्ट से भी लेती है। असेंबली तो असेंबली आपका पार्ट से भी रेफरेंस लेता है और असेंबली से भी। इन केस आप कभी कभी क्या होता है कि आपने डिफरेंट कंपोनेंट बना दिया, या फिर एक सिंगल कंपोनेंट को एज सेव एज करके आपने नया कंपोनेंट बनाया, और कभी कभी इश्यूज ये आते हैं कि आपने उस कंपोनेंट में चेंज किया और असेंबली में रिफ्लेक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ऑफकोर्स क्योंकि मे बी आपने जिस कंपोनेंट में चेंज किया और वो मे बी असेंबली उसी कंपोनेंट का रेफरेंस लेके क्रिएटेड है। अगर आप कंपोनेंट में कुछ भी चेंजेस करोगे तो असेंबली रिफ्लेक्ट करेगी, और असेंबली या पार्ट में कुछ भी चेंजेस करोगे तो ड्राइंग भी रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, इन रेफरेंसेस को रिमूव करने के लिए या ब्रेक करने के लिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, सेवेज का ऑप्शन यूज करते हैं। सेवेज यानी नई कॉपी क्रिएट करते हो, नई फाइल पे वर्कआउट करते हो, उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। या पैक एंड गो करते हैं। विद द हेल्प ऑफ पैक एंड गो भी आप एक नया रेफरेंस या नई फाइल क्रिएट कर सकते हो। पैक एंड गो आप जब भी करते हो तो अगर आपने असेंबली ओपन करके पैक एंड गो करो तो इसके जितने भी रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, पार्ट है, ड्राइंग है, वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाते हैं और एक अलग से एक्स्ट्रा कॉपी क्रिएट हो जाती है जहाँ पे आप जिस लोकेशन पे आपको सेव करना है। लेट मी शो यू। जस्ट आई जस्ट गो फॉर द असेंबली। आई जस्ट ओपन अ असेंबली हियर, फाइल एंड पैक एंड गो। व्हेन आई क्लिक ऑन पैक एंड गो तो ऑटोमेटिकली वो मुझे दिखा देता है कहाँ से वो कौन सी फाइल पिक कर रहा है और रेफरेंस कहाँ से उठा रहा है। देन आई जस्ट गो कि मुझे सेव करना है, कौन से एक फोल्डर में सेव करना है, जिप करना है और सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो इजीली। ओके, इफ़ इन केस आपको चेक करने की रेफरेंस कहाँ से उठा रहा है कोई कंपोनेंट, अगर आपने कोई कॉपी बना के रखी है, आपको चेक करने की उस कॉपी में मैं चेंजेस करूँगा रिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा, तो फाइंड रेफरेंस पे क्लिक करो। अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट पे आप चेंजेस करोगे तो इस असेंबली पे इफेक्ट आएगा ही आएगा आपका। तो ऐसा करके आप चेक कर सकते हो कि असेंबली वो आपको पिक कर रहा है तो कौन से रेफरेंस से पिक कर रहा है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ रेफरेंसिंग कि पार्ट, असेंबली और ड्राइंग आपस में कैसे रेफरेंसेस शेयर करते हैं। देन आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे that was SolidWorks RX. In our SolidWorks RX, it is a self-assistant tool. अब अपने हार्डवेयर को खुद चेक कर सकते हो with the help of SolidWorks RX. What I do, I just open SolidWorks, close all the file which are open, go to your home tab, open your SolidWorks RX. आप SolidWorks RX यहाँ से भी ओपन कर सकते हो और यू जस्ट गो एंड फॉर द सर्च ऑप्शन और डायरेक्ट सर्च दी SolidWorks RX ऑप्शन। इन केस आपको ओपन GL मोड, यानी इन केस अगर आपने कोई SolidWorks में इशू आ रहा है आपको, ठीक है, इशू आपको समझ में नहीं आ रहा इशू किस रिगार्डिंग है, इन डेट केस आप ये दो मोड यूज कर सकते हो। SolidWorks सेफ मोड, जिसमें आपका पहला मोड होता है कि ओपन क्लिक हियर टू लॉन्च SolidWorks इन ओपन GL मोड, और बाईपास टूल ऑप्शन सिस्टम ऑप्शन सेटिंग्स। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन से आप SolidWorks लॉन्च कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, SolidWorks क्लोज कर देना है। ठीक है, अगर कोई भी सेशन ऑन है तो SolidWorks क्लोज कर दो। इससे SolidWorks लॉन्च करो पहली वाली ऑप्शन से, बाईपास ओपन SolidWorks बाई ओपन GL मोड। इस पर जैसे क्लिक करोगे वापस SolidWorks लॉन्च होने लग जाएगा, यानी स्टार्ट होने लग जाएगा। ठीक है, बट जो ओपन है उसको पहले क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आपने ओपन किया SolidWorks विद द हेल्प ऑफ ओपन GL मोड,
फिर आप इशू चेक करो, अगर वो इशू वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, इन दैट केस वो आपका ग्राफिक का इशू नहीं है। ओपन जीएल मोड का मतलब ये है कि वो आपको ग्राफिक को बाईपास करके ओपन करता है सॉलिडवर्क्स को, ठीक है। अगर आपका ग्राफिक का इशू होगा तो वो आपको जैसे ही आप इस मोड से सॉलिडवर्क्स ओपन करोगे तो वो इशू वापस आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ चेक करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कि इशू किस रिलेटेड है, ठीक है। फिर आप अपने ग्राफिक कार्ड ड्राइवर अपडेट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है वो फर्दर प्रोसेस के लिए। इससे आप कंफर्म हो सकते हो ग्राफिक कार्ड का इशू है या नहीं है। अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब वो ग्राफिक कार्ड का इशू नहीं है। फिर से आपको सॉलिडवर्क्स क्लोज करना है, फिर आपको वापस सॉलिडवर्क्स लॉन्च करना है, बाईपास टूल ऑप्शन सेटिंग्स। इसका मतलब कि अब सॉलिडवर्क्स जो ओपन होगा तो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ओपन करेगा सॉलिडवर्क्स को, यानी जैसे आपने इंस्टॉल किया था फर्स्ट टाइम वैसे ही उस सेटिंग्स के साथ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ ओपन करता है। आप वापस चेक कर सकते हो कि वो आपको इशू रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो इशू नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है यानी आपका सिस्टम सेटिंग्स का इशू है। अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो मतलब आपके सिस्टम सेटिंग्स का इशू भी नहीं है वो आपका। तो ये दो मोड से आप अपना चेक कर सकते हो कि अकॉर्डिंग किस रीजन से रिफ्लेक्ट हो रहा है। डायग्नोस कर सकते हो चीज़ों को, आप चेक कर सकते हो अपनी चीज़ें, रैम वगैरह। इवन यहाँ पे एक लिंक गिवन है आपका ग्राफिक कार्ड के रिगार्डिंग। आप अपने ग्राफिक कार्ड चेक कर सकते हो आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग सुटेबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे वो आपको इस सॉलिडवर्क्स की साइट पे लेके जाएगा, वहाँ पे अपना हार्डवेयर सर्टिफिकेशन चेक कर सकते हो। जैसे मैंने अपना क्लिक किया इस लिंक पे तो ये मुझे उस सॉलिडवर्क्स के लिंक पे लेके चला गया। यहाँ पे आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कौन से वर्जन पे आप वर्कआउट कर रहे हो, 21, 22, 19, 18। सिस्टम चेक कर सकते हो कौन सा सिस्टम है आपके पास, उस सिस्टम में सिस्टम का मॉडल कौन सा है आपका, और उसमें अभी आप करंटली कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर इस लिस्ट में आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाए तो वेल एंड ओके, कोई इशू नहीं। आपको रिकमेंडेड ड्राइवर मिल जाएगा, ये रिकमेंडेड ड्राइवर है उस वर्जन के लिए, ठीक है। अगर आपका ग्राफिक कार्ड इसके लिस्ट में नहीं है तो वो सर्टिफाई नहीं है। डेट डजंट मीन कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको बस लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड ड्राइवर डाउनलोड करना है एंड यूज़ करना है, ठीक है। बट वो सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड नहीं है, सर्टिफाई नहीं है, ओके। सिस्टम मेंटेनेंस चेक कर सकते हो, बैकअप वगैरह आप स्टार्ट मेंटेनेंस कर सकते हो, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस पे क्लिक कर सकते हो। जो भी आपके टैम फाइल वगैरह वो रिमूव करता रहेगा, क्लीन करता रहेगा, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। दी नेक्स्ट ऑप्शन इज़ आवर प्रॉब्लम कैप्चर। हम प्रॉब्लम कैप्चर पे वापस आते हैं। रिलायबिलिटी पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि आपका सिस्टम दिन में आपने कितनी बार नॉर्मली बंद किया है, या फिर आपने क्लोज किया है, या फिर हैंग करके बंद हुआ है, या टास्क बार के थ्रू बंद किया, कैसे किया, उसके थ्रू आपका डिटेल्स शो करता है। फिर आपका आता है प्रॉब्लम कैप्चर टूल। नॉर्मली तब आपको, ये आपके लिए नहीं होता, ये वॉर के लिए होता है, यानी जहाँ से भी आपने सॉलिडवर्क्स परचेज किया होगा उस वॉर यानी उस रीसेलर के लिए होता है कि अगर आपका इशू आपके अंडरस्टैंडिंग में नहीं है तो वो क्या करते हैं नॉर्मली कि वो अपने एंड पे चेक करेंगे, उन्हें क्लियर होगा तो ठीक है, नहीं तो वो एक सर्विस रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं डेसॉल्ट में। और डेसॉल्ट में वो सर्विस रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए उन्हें प्रॉब्लम कैप्चर करना पड़ता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल वो आपका प्रॉब्लम कैप्चर करते हैं, सिस्टम के लॉग फाइल, क्रैश डेटा, सारी चीज़ें पिक करते हैं और वो सेंड कर सर्विस रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। देन विद इन सम वर्किंग डेज वो आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग योर इशूज़, ठीक है। सो आई जस्ट कैंसिल दिस एंड कैंसिल दिस। सो दिस इज़ माई सॉल्डवर्क्स RX। सो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ें खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। ग्राफिक का इशू है या फिर सिस्टम सेटिंग्स का इशू है या आपका ग्राफिक कार्ड ड्राइवर रिकमेंडेड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। सो की टेक्स अवे, फर्स्ट ऑफ ऑल we go through with our basic and user interface. Then we need to we understand the difference between the system option and document property. Document property is very useful for the template, that's why we understand the difference between. Then we just go ahead the template creation process, how we can create the template of part level, assembly level and overview of drawing level, ठीक है। So and then we go ahead with the difference between the file referencing and handling options, and the at the end SolidWorks RX। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा अगर कोई डाउट वगैरह हो। नेक्स्ट सेशंस में आपके मोस्टली डाउट मैं ट्राई करूँगा कंप्लीट कर लूँ, कवर कर लूँ, ठीक है। बाकी आप
कंटिन्यू कीजिए सीरीज, आपको और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने मिलेगी। नेक्स्ट हर एक वीडियो में कुछ आपको यूनिक देखने मिलेगा। ओके, सो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।